Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. In this video, we will start exercise 5.2 of chapter number 5 arithmetic progression. We have done exercise 5.1 in which we got to know that whether the equation is in the form of arithmetic progression or not, and if it is in the form of arithmetic progression, what is the first term, what is the common difference, and what are the nth terms. So let's move ahead and let's start exercise 5.2. Question number 1 is fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN is the nth term of the AB. आपको एक fill in the blank के फॉर्म में एक टेबल दे रखी है, उसमें आपको हर एक पार्ट में दूसरी चीज़ें निकालनी होंगी. फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है. हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें ए 8 की वैल्यू निकालनी है. तो फर्स्ट पार्ट में हमें ए 8 की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब ए प्लस 7 डी. ए की वैल्यू है 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 plus 21 is equals to 28. तो A8 की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 28. तो ये A8 28 आ गया. अब हम यहाँ पर AN की जगह 28 लिख देते हैं. सेकेंड पार्ट में A की वैल्यू हमारे पास -18 है, D हमें पता करना है, N की वैल्यू 10, n is equals to 10 and A10 हमें दिया हुआ है 0. A10 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 0. तो A10 is equals to A plus 9 into D. A10 की वैल्यू 0 है, A की वैल्यू हमें गिवन है -18 एंड D की वैल्यू हमें नहीं पता. 18 को इधर लेकर जाएंगे, 9D is equals to 18 हो जाएगा एंड D is equals to 18 upon 9 which is equals to 2. तो D की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 2. इस ब्लैंक को फिल करके यहाँ पे D is equals to 2 लिख लेते हैं. थर्ड पार्ट इज A की वैल्यू हमें नहीं पता, D is -3, N is 18 and AN is -5. तो D थर्ड पार्ट, लेट्स डू इट हेयर. A हमें पता करना है, AN मतलब A18 की वैल्यू हमें दे रखी है -5. A18 is equals to -5. A18 is equals to A plus 17 into D. -5 is equals to A plus 17 into D की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? -3. -5 is equals to A plus 17 into 3 is 51, जो हमारा माइनस के साइन में होगा एंड हम उसे इधर लेकर चले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा. सो A इज इक्वल्स टू +51 -5 इज 46. A की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 46. हम उसको यहाँ फिल कर लेते हैं, 46. नाउ फोर्थ पार्ट इज द वैल्यू ऑफ A इज -18.9, D is 2.5, N is, we don't know the value of N and AN is 3.6. हमें यहाँ पर N की वैल्यू निकालनी है, तो AN is equals to A plus N minus 1 into D. सिंपल फॉर्मूला है जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है. यहाँ पर A की वैल्यू है, सबसे पहले AN की वैल्यू है +3.6 is equals to -18.9, जो यहाँ पे हमें गिवन है, प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है 2.5. 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5. दोनों को हम ऐड कर लें, द वैल्यू इज 22.5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5. तो n माइनस 1 is equals to 22.5 divided by 2.5. पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर सकते हैं एंड 25
कि टेबल में 225 कब आता है, 25 9 225 and n minus 1 is equals to 9. This implies that n is equals to 10. n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई है. इसको हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं. अब हमारा लास्ट पार्ट है where a is 3.5, d is 0, n is 105 and we don't know the value of an. Now fifth part is the value of a is 3.5, the value of d is 0, the value of n is 105 and we want to find the value of an. a 105 is equals to a plus 104 into d. The value of d is 0 and the value of a is 3.5. So value of a 105 is equals to 3.5 plus 104 into 0 which is equals to 3.5. तो a 105 की वैल्यू क्या हुई हमारी, 3.5 ही हुई. So this is all about the question number first. Now move on to question number 2. Second question is choose the correct choice in the following and justify. 30th term of the AP. ये AP है, हमें इसकी 30th term बतानी क्या होगी. 30th term मतलब A30 बताना है. A30 की इज इक्वल टू A प्लस 29D. A की वैल्यू है हमारे पास 10, 29, D की वैल्यू है 7 minus 10 is minus 3. So 10 plus 9 3 is 27, 3 2 is 6, 7 8 is equals to minus 77. So your answer is C, minus 77. Second part is 11th term of the AP is. हमें कौन सी term निकालनी है, 11 term निकालनी है, मतलब A plus 10D. इसमें से अगर हमें माइनस करें D की वैल्यू निकालने के लिए, हम -1/2 माइनस 3 करें तो -1/2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 3 2 6 माइनस 1 इज़ 5/2. D की वैल्यू हमारी 5/2 आ गई एंड A इज़ -3 प्लस 10 into 5/2 is equals to A11. So A11 is equals to -3 plus 5 5 is 25 which is equals to 22. A11 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 22. So this is all about question number 2. Now move on to question number 3. Third question is in the following APs find the missing terms in the boxes. First part is 2 box and 26. हमें बीच वाली टर्म निकालनी है. तो बीच वाली टर्म निकालने के लिए हमें A2 चाहिए. A2 इज़ A प्लस D. उसके लिए हमें D चाहिए होता है. तो D की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2. तो हम इन दोनों को अगर इक्वल रख दें तो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2. A2 की वैल्यू हमें नहीं पता, A1 की वैल्यू है हमारी 2, A3 की वैल्यू है 26 माइनस A2. इधर ले जाएंगे हम, ये जाएगा 2A2 इज इक्वल्स टू 26 प्लस 2, 2A2 इज इक्वल्स टू 28 एंड A2 इज इक्वल्स टू 14. A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 14 आ गई. सेकेंड पार्ट इज बॉक्स 13 बॉक्स 3. तो यहाँ पे हमें A1 की वैल्यू नहीं पता, A2 की वैल्यू हमें पता है 13 जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस D इज इक्वल्स टू 13. इस इक्वेशन 1 मान लीजिए. A3 की वैल्यू हमें नहीं पता, A4 इज इक्वल्स टू 3. A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3. So from 1 and 2 A is equals to 13 minus D and A is equals to 3 minus 3D. Minus minus plus 0, this is 13 and this is 2D. This implies that 2D, this is 10 and 2D is equals to minus 10. This implies that D is equals to minus 5. D की वैल्यू minus 5 आ गई, 13 में से 3 जाएंगे 10 आ जाएगा. माइनस D प्लस 3D is 2D
जिससे d की वैल्यू 5 आ जाएगी। सो a प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, तो d इज इक्वल a इज इक्वल टू 13 माइनस d which is equals to 13 minus 5. So a is equals to 13 plus 5 is 18. अब a की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 18 आ गई है। अब a3 is equals to a plus 2d, a की वैल्यू हमारी 18 थी, प्लस 2 into minus 5, so 18 minus 10 is equals to 8. Now move on to the third part. Third part, a is equals to 5 हमें दिया हुआ है, a1, a2 हमें नहीं पता, a3 हमें नहीं पता एंड a4 हमें दिया हुआ है 9 1/2। 9 1/2 का मतलब 9 2 is 18 plus 1 19 upon 2। सो a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d। a4 की वैल्यू है 19/2, a की वैल्यू है 5 प्लस 3d। 5 को इधर ले जाएं तो 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5 इज 9/2। सो d इज इक्वल टू 3/2। d की वैल्यू क्या आई हमारी, 3/2 आई। अब सिंपल है, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, a की वैल्यू है 5, d इज 3/2, 5 2 is 10 प्लस 3 13/2। a2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 13/2। a3 की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस 2 इंटू डी, a इज़ 5, 2 इंटू 2 इंटू 3/2। डी की वैल्यू तो 3/2 आई है ना, तो 2 से 2 कैंसिल एंड 5 प्लस 2, 5 प्लस 3 इज़ 8। a3 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 8। सो 5 13/2, 8 9 1/2। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज -4 बॉक्स 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 एंड 6। मतलब हमें फोर्थ क्वेश्चन में a की वैल्यू दी हुई है -4, a2 की निकालनी है हमें वैल्यू, a3 की निकालनी है, a4 की निकालनी है, 2 3 4 5, a5 की निकालनी है एंड a6 की हमें दी हुई है 6। सो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6। a की वैल्यू है -4 प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6। सो 5d इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4, 5d इज इक्वल्स टू 10। सो d इज इक्वल्स टू 2। d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। जब d की वैल्यू 2 आ गई तो a प्लस d हो जाएगा हमारा -4 प्लस 2 इज -2, -2 आ गया। a प्लस 2d इज इक्वल्स टू -4 प्लस 2 इंटू 2 विच इज 0। फिर a प्लस 3d अगर हम करें तो -4 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2, और प्लस a प्लस 4d अगर हम करें तो -4 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या आ गई, -4 -2 0 2 4 6। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें a की वैल्यू नहीं दी हुई, हमें a2 की वैल्यू दी हुई है और a6 की वैल्यू दी हुई है। तो उससे हमें फाइंड आउट करना है, पहले a की वैल्यू, फिर d की वैल्यू और देन फर्दर वैल्यूज़। सो फिफ्थ पार्ट में आपको a की वैल्यू नहीं पता, a2 इज़ 38, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस d इज़ 38 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। a3 we don't know, a4 we don't know, a5 we don't know, a6 is equals to -22 which is a plus 5d is equals to -22। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a is equals to 38 minus d
and A is equals to minus 22 minus 5D. साइन चेंज कर लेंगे, दिस माइनस, दिस प्लस एंड दिस प्लस, दिस विल बी 0 and this is equals to 10, 60 and this is equals to plus 4D. तो 4D is equals to minus 60 and D is equals to minus 15. D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, minus 15. So A minus 15 is equals to 38. This implies that A is equals to 38 plus 15 is 53. The value of A is 53. 53 आ गया है, 38 पता है हमें. अब हमें सिंपली थर्ड टर्म, सो A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D. A की वैल्यू 53 है, D की वैल्यू माइनस 15 है. सो 53 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 23. 23 आ गया. नेक्स्ट A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D. A इज इक्वल्स टू 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15. 53 minus 45 is equals to 8. 8 आ गई. और A5 is A plus 4 into D. 53 plus minus 4 into 15. 53 minus 5 4 are 20 and 60 is equals to minus 7. यहाँ पे minus 7 आई and then minus 22. This is all about the fifth part, and with this I'm going to end question number 3. Now move on to question number 4. Question number 4 is which term of the AP is 78. ये हमारी AP दे रखी है 3, 8, 13, 18 and so on. हमें बताना है 78 कौन सी टर्म है, मतलब AN हमें 78 दिया हुआ है and we have to find the value of N. So AN is equals to A plus N minus 1 इंटू डी. उसके लिए A इज इक्वल्स टू हमारा 3 है, D इज इक्वल्स टू हमारा 5 है. नाउ पुट दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन. AN इज 78, 3 प्लस N माइनस 1 इंटू 5. सो 78 माइनस 3 इज N माइनस 1, 5. 75 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू N माइनस 1. 5 1 is 5, 5 5 is 25. N minus 1 is 15, so N is equals to 16. N की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 16 आ गई. It means 16th term of this AP is 78. Now move on to the fifth question. Fifth question is find the number of terms in each of the following AP. First AP में A की वैल्यू है 7, 7, 13, 19 up to 205. D की वैल्यू है 13 minus 7 is 6. AN की वैल्यू है 205. हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, मतलब हमें N की वैल्यू निकालनी है. सिंपल है. AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है हमारी 6. 205 माइनस 7 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 6. माइनस करेंगे. 15 माइनस 7 इज 8, 9, 1 डिवाइडेड बाय 6 N माइनस 1. 6 3 is 18, 6 3 is 18. N minus 1 is 33. So N is equals to 34. N की वैल्यू क्या आ गई, 34. That means there are 34 terms in this AP. Second part is 18, 15, 1 by 2, 13 and up to minus 47. A की वैल्यू है हमारी 18. D की वैल्यू निकालने के लिए 15 2 is 30, 131 upon 2 minus 18 अगर हम निकालें तो 31 upon 2 minus 18 2 is 36. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी minus 5 upon 2. D की वैल्यू हमारी minus 5 upon 2 आ गई. AN is equals to minus 47. AN A plus N minus 1 into D. Minus 47 is equals to 18 plus N minus 1 into minus 5 upon 2.
minus 47 minus 18 is equals to n minus 1 minus 5/2. 8 plus 7 is 15. 65 into minus 2/5. 5 ones are 5, 5 threes are 15 is equals to n minus 1. 13 twos are plus 26 is equals to n minus 1. So, n is equals to 26 plus 1, which is equals to 27. So, there are 27 terms in this AP. Now, move on to question number 6.